So we are there at lecture number 2, that is called type 2, will be starting today. And what is the type 2? Is the inverse of a matrix. So first of all, what do you mean by inverse of a matrix? So when we discuss about the word inverse, the first things comes to mind, like, is it like a algebraic inverse? So it's not like that, it will be a different. Now we are talking about a matrices. There are some rules from algebra and matrices might match, but that doesn't mean all the analogy of algebraic rule will be followed for the matrices. Now what is this first of all inverse of a matrix? Remember, suppose there is a matrix A, then its inverse is denoted by this particular form, A inverse. So two matrices A and A inverse. When two matrices, let's say if A is a square matrix of order M, and if there exists another square matrix B. So let's say there is another matrix B. So remember, two matrices are said to be inverse of each other if AB equals to BA equals to identity matrix, say I, where I is the called identity matrix of order M, then this matrix B is called as an inverse of a matrix. So in short, B can be also written as A inverse, provided it should follow the rule AB equals to BA equals to I. So this is very important. Now there are different properties of inverse of matrix. So let's go to the inverse of matrix. So what are the properties of inverse? So first property is that A inverse exists only when it's a non-singular matrix. Now what do you mean by non-singular? That means determinant A should be non-zero. And one more thing, that remember, whatever method you follow, now in today's lecture we'll be introducing few methods for finding the inverse. So remember, whatever method you follow, the A inverse is always a unique. This is something very important. A inverse is always unique. So let's go to the next part after this. Now the next property over here, number 2, that you have to remember that every matrix, and if its inverse exists, then A into A inverse or A inverse into A is always equal to the identity matrix. So this is the law which we'll be using for finding the inverse of a matrix. The next one we have number 3, that A inverse into identity matrix equal to I into A inverse, which is equal to A inverse. तो इट इज समथिंग लाइक अलजेब्रिक लॉ ही हो गया ना, जब किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, वैसे मैट्रिक्स का भी है. नेक्स्ट वन, नाउ लॉ ऑफ रिवर्सिबल ऑफ इनवर्सेस. इन दिस लॉ यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरी ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. So inverse of any matrix. Now remember one more thing, you have to remember the word invertible. Now when you go through the textbooks, you go to the government books, you'll come across word invertible. So invertible मतलब जिसका inverse exist करता है. मैंने कहा जिसका inverse exist करता है. अब सबसे पहले inverse of a matrix can be obtained by two methods. So there are two methods for finding the inverse of a matrix. So what are these two methods are? The first method is either elementary transformation. So we can find out A inverse by elementary row transformation, or we can find out this by elementary column transformation. And the next method for the A inverse is finding the A inverse by adjoint method. Find A inverse by adjoint method. So today first we will start with the section A, a little bit case study. Kindly pay attention properly, जरा सही तरीके से ध्यान दीजिए इस पर. So what is a case study? That A inverse by elementary row transformation. क्वेश्चन कैसे रहेगा आपको आपके एग्जाम में? Find the inverse of a matrix by elementary row transformation. मतलब हमें सम सॉल्व करना है, A इनवर्स फाइंड करना है, बट कैसे? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो कैसे एप्लीकेशन करेंगे इस क्वेश्चन का वो देख लेते हैं.
बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, इन सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स अपने तरफ से बनाने की कोशिश की है। तो आप अगर इन स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सम सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा स्टेप्स में सबसे पहले मैंने क्या काम किया हुआ है, स्टेप्स में सबसे पहले काम किया हुआ है, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो चेक करिए कि उसकी नॉन सिंगुलरिटी, तो नॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। कन्फर्मेटरी टेस्ट, आई होप कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एक लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में इसका आपको एक्सप्लेनेशन किया था। कन्फर्म कि हमें टिकट बुक करनी है तो हम जाते हैं पोर्टल पर और जाके चेक करते हैं हाँ भाई टिकट अवेलेबल है या भाई इतनी वेटिंग है इतने दिनों के लिए, फिर हम कंफर्म करते हैं। तो वैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर अगर ये नॉन जीरो है तो ये कंफर्म है, पर अगर ये जीरो है तो क्या हम सब वहाँ छोड़ेंगे? तो आप उसको खुद को इतना लकी ना समझे, खुद को इतना भाग्यशाली ना समझे कि आपको बोर्ड में कोई ऐसा सम दिया जाएगा जहाँ डिटर्मिनेंट जीरो है और आपका काम बन जाता है। ऐसा नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। आपको जो भी सम रहेगा उसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा और आपको चेक करके देखना भी है। नंबर 2, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, ये तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद आपको रिलेशन इस्तेमाल करना है। क्या रिलेशन इस्तेमाल करना है? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, रिलेशन हमने ऊपर भी लिखा था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये रिलेशन इस्तेमाल करने के बाद आपको इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे पहले वाले एक्सरसाइज में, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है। अब होगा क्या, व्हाट विल हैपन when you will perform elementary row transformation or elementary column transformation as the case may be, as the given to you, what happen, because of that the matrix I on right hand side will convert to some new matrix, say B. Now remember something, that I into A inverse is always equal to A inverse, and this shows A inverse is equal to B. This is a very important and easy process, elementary row transformation, and that's what we have to follow. Now remember, suppose any matrix is there with you which is given by say A11, A12, A13. I'm talking about 3 cross 3 matrix, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है आपका। ठीक है ना। और मुझे अगर मान लो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो देखिए वो बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कन्वर्जन के लिए जाने वाले हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, याद रखिएगा। हमेशा जब आप शुरू करेंगे तो पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएं, ठीक है ना। इस एलिमेंट को 1 बनाने के बाद आप नीचे वाले 2 एलिमेंट को 0 बनाएं, फिर आप मिडल वाले 1 पर जाए, विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 ये 2 को 0 बनाए, और उसके बाद इस एलिमेंट को 1 बनाए और बाद में ये 2 0 बनाए। इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो पहले आपको एलिमेंट A11 को 1 बनाना है विद रिस्पेक्ट टू A11, बाद में आपको A12 और A13 को 0 बनाना है। फिर आपको एक काम करना है, आपको ये जो एलिमेंट है A22 उसको आपको 1 बनाना है। ये 1 बनने के बाद ये जो आपका एलिमेंट है A12 और A32 इसको आपको 0 बनाना है। इसके बाद आपको इस एलिमेंट पर आना है जो A33 है, इसको 1 बनाना है, और बाद में आपको ये जो 2 एलिमेंट है जो A13 है और ये 23 है इसको आपको 0 बनाना है। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ ये स्टेप्स के माध्यम में मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर 1 में एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है, स्टेप्स के साथ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Now what happened, many times student can't understand this 1 के बाद ये 2 0 कैसे लेके आ जाए। देखिए 1 लाना आपका परम कर्तव्य है, ये 1 तो आपको लेके आना पड़ेगा। इस 1 के बाद की बात कर रहा हूँ। अब बहुत बार होता क्या है, ऑपरेशन के दौरान यहाँ 1 होता है, यहाँ कोई भी एलिमेंट है, यहाँ m और n होता है। तो एक फिक्स ऑपरेशन जो मैं आपको इस कॉलम के लिए बता रहा हूँ, जो मैं आपको ये रोज के लिए बता रहा हूँ, वही आप फॉलो कर सकते हैं बाकी बचे हुए पार्ट में। तो याद रखिए, अगर आपको इसको 0 बनाना है तो m में से क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 होगा, डेफिनेटली खुद m सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 होगा। तो इस 1 का एडवांटेज लेते हुए एक फिक्स ऑपरेशन के साथ बनाना चाहिए सम,
that R2 change to R2 minus m times of R1 and R3 change to R3 minus n times of R1. तो ये फिक्स ऑपरेशन है, इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ काम करेगा, और याद रखना आपको ये फिक्स ऑपरेशन आपको हमेशा कैरी करना है. अब बारी करते हैं कि अब बारी होगी बी के स्टडी की. इसका नाम है ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. अब इस केस में सबसे पहला स्टेप तो आपका सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. नंबर 2, you're using the relation A inverse into A equal to identity matrix. You'll apply elementary column transformation. This identity matrix will convert to some new matrix B, and we get our answer A inverse is equal to B, because previous part की तरह A inverse into I is once again a A inverse. अब फिर एक बार मान लेते हैं यहाँ आपके पास मैट्रिक्स A है, इसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. अब फिर एक बार आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, पर याद रखिएगा इस टाइम पर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है. तो फिर एक बार विद रिस्पेक्ट टू 1 ये 2 को 0 बनाए, बाद में इस मिडल वाले 1 पर आए, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये 2 को 0 बनाए, बाद में इस वाले 1 पर आए, और बाद में इन 2 को 0 बनाए. तो एक फिक्स ऑर्डर में आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. फिर एक बार अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ m है और यहाँ n है, ये एलिमेंट्स हमें नहीं पता, बट अगर हम यहाँ 1 लाने में कामयाब हो गए और मुझे अगर इस कॉलम 2 में m को 0 बनाना है और कॉलम 3 में भी n को 0 बनाना है, तो एक फिक्स ऑपरेशन करके चलते हैं, और वो है कॉलम 2 चेंज टू C2 माइनस m टाइम्स ऑफ C1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू C3 माइनस n टाइम्स ऑफ, कोई नंबर रहेगा वहाँ, 2 रह सकता है, 3 हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन वहाँ चेंज हो जाएगा, बट ये फिक्स रहेगा. अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव. एक सिंपल चीज़ फंडा याद रखना है कि किसी भी नंबर में से जब वो खुद नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तभी आपको 0 मिलेगा. इसी फंडे का हम इस्तेमाल करने वाले. ऑपरेशन करते वक्त एक बात याद रखनी है कि ए बी इक्वल्स टू सी. अगर सब में आपको इस प्री फैक्टर, प्री का मतलब है पहला, प्री फैक्टर एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ पोस्ट फैक्टर, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको. अगर कभी भी आपको प्री फैक्टर पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको पोस्ट फैक्टर है और पोस्ट फैक्टर पर अगर कोई काम करना है तो आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करेंगे, और आपको आपके आंसर्स सबसे ऑब्टेंड होंगे. अब लास्ट सेक्शन जो है इस केस स्टडी का, और वो है, मैंने कहा था थोड़ा सा बड़ा केस स्टडी है, सी सेक्शन, and which is A inverse by adjoint method. तो विद्यार्थीगण के मान्यता अनुसार ये बहुत ही सिंपल मेथड माना जाता है, और बच्चे इस मेथड को काफ़ी पसंद भी करते हैं. बट एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर का सुनना है, ना बल्कि जो विद्यार्थियों को पसंद है. अगर आपको एग्जामिनर ने बोल दिया फाइंड ए इनवर्स, तो आए ना बाएँ सीधा ठाएँ ठाएँ आप इस्तेमाल करें सीधा इस मेथड का. बट अगर आपको एग्जामिनर ने बोला ए इनवर्स बाय ERT मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या ए इनवर्स बाय ECT, तो आप बन जाएंगे. बट अगर आपको बोला ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करने बोला, तो आई थिंक एडजॉइंट मेथड से आपको आसान. देखिए थोड़े प्रैक्टिस के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी वेरी स्ट्रांग इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. सो ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. सबसे पहले एडजॉइंट क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो एडजॉइंट समझने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं. आपको देखिएगा ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, A11, A12, A13. 1 से मतलब है रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3. रो का नंबर पहले, कॉलम का नंबर बाद में. वैसे ये रो 2 कॉलम 1, सो 21, रो 2 कॉलम 2 22, सो ऑन 23, 31,
32, 33. Now A inverse by the adjoint method. So A inverse by adjoint method में क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा इसका पहला जो पुर्जा है, पहला पार्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, और वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट. अब माइनर ऑफ एलिमेंट ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैथमेटिक्स में MIJ के तौर पर डिनोट किया जाता है. तो MIJ मतलब क्या, minor of an element is expressed by suppressing that particular row and column where element is present. I'm repeating, minor of an element is expressed by suppressing that particular row and column where element is present. Example के तौर पर कल अगर मैंने आपको बोला what is the minor of A11, तो पहली बात तो इसको डिनोट कैसे करेगी, M11 के तौर पर, और क्या करेगी, A11 को सप्रेस करेगी. क्या होगा, A11 को सप्रेस करने के बाद क्या बचेगा दोस्तों, 22, 23, 32 एंड 33. नेक्स्ट वन और एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, जैसे लेता हूँ माइनर ऑफ A23. माइनर ऑफ A23 विल बी M23 इक्वल्स टू, अब A23 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दीजिए आप, क्या बचेगा आपके पास, A11, A12, A21 एंड A22. अब उसके बाद 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सबको बता दें, हाउ टू अप्रोच दैट 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, कैसे अप्रोच करना है वो दैट यू नो. अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद माइनर के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा. अब आप कहेंगे यार एक्सप्लेन करने वाले हो ए इनवर्स, एक्सप्लेन करने वाले हो एडजॉइंट, और ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हो. एडजॉइंट पहुंचने तक याद रखिएगा मुझे ये सबको समझना पड़ेगा. तो नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. Now what is a cofactor of an element? It is always denoted by Aij, and the formula for this is minus 1 raised to I plus j into Mij, where I represent row and j represent column. So if I ask you that cofactor of A11, then without any hesitation you will be writing A11 equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into M11. Now minus 1 raised to 1 plus 1, that is 1 plus 1 will be 2, minus 1 का even power that will be 1, और M11 का तो मेहनत आपने यहाँ कर लिया हुआ है तो इसको एज इट इज लिखना है. अब यहाँ मैं आपको ये डिटर्मिनेंट लिखकर बता रहा हूँ, बट जब आप सम सॉल्व करोगे तब आपने माइनर में डिटर्मिनेंट को पहले ही सॉल्व कर लिया रहेगा, तो वो सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो आंसर सिर्फ आपको यहाँ लिखना है. तो यार भैया दिस विल बी A22, A23, A32 and A33. That's what we have cofactor of A11, that is capital A11. और देखिए किस तरह लिखा गया हुआ है, how it has been written. नेक्स्ट वन, अगर मैं कहता हूँ कल कि कोफैक्टर ऑफ A23, so what will be that? That will be A23 equals to minus 1 raised to 2 plus 3 into M23. Now minus 1 raised to 5 will be minus 1. M23, ये देखिए M23 आपका A11, A12, A21, A22. तो ये रहा आपका कौन सा पार्ट, ये पार्ट रहा आपका कोफैक्टर का. स्टिल क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर एक चीज जरूर अब तक है कि सर ये क्यों बता रहे हैं आप हमें, क्योंकि अब हम एंट्री कर रहे हैं कि कोफैक्टर के बाद अगला पार्ट जो है वो एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको कैसे हैंडल करेंगे हम देखिएगा. तो हम हेडिंग जो है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर काम कर रहे हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. ये तो आपको मानना पड़ेगा
कि हमने 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात की है। So matrix of cofactors that is equals to A11, जैसे एलिमेंट है वैसे मैंने लिख लिया, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो याद रखिए जो एडजॉइंट जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एडजॉइंट कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज होता है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ट्रांसपोज। सो इन शॉर्ट, so what is the adjoint of A? When I take a transpose of above, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 and 33. And finally, A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. Definitely before that we have to check that determinant A, we have to show it is non-zero. So this is something, very important one. So let's understand the process. We start with the matrix itself. From matrix we get minors. From minors we get cofactor. Cofactors we get adjoint, and from adjoint we get A inverse. So this is the whole process, what we have done in the case study, why we have done that, all answers can be seen by this flow chart. So there are some laws which I want to discuss with the adjoint of matrix, especially for the MCQs. For our HSC student also they are required, and those who are JEE student, for them they are useful too. So these are the questions which are many times been there, so kindly pay attention. So first thing, this formula itself, number 2, A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into IN. So today, in fact, our today's first question under this particular case study, particular type, will be this proving this particular result. ये रिजल्ट में देखें ना, एडजॉइंट ए फाइंड करने वाले हम और ये प्रॉपर्टी भी फाइंड करने वाले, तो बहुत कुछ चीज़ें कवर हो जाएगी. नंबर 3, adjoint of AB equals to adjoint of B into adjoint of A. Number 4, adjoint of A dash equal to adjoint of A the whole dash. And the last one, determinant of adjoint of A equal to determinant of A raised to n minus 1, where n is a order of a square matrix. N is a order of square matrix. It is a very big case study of, we have A inverse by ERT, elementary row transformation, A inverse by CT, by elementary column transformation, and then A inverse by adjoint method. So that's what we're going to see, and let's continue further with the questions. So first question under type 2, that is A inverse by different methods, as well as the adjoint of a matrix. So let's see, what is this question is. So we discuss that there is a first question, that there is a matrix A, which is a 3x3 matrix.
and we have to verify result A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant of A into I. Definitely I stand for identity matrix. Since in this case there is a 3 cross 3 matrix, original matrix A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसलिए आई का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही होगा. तो ये हम आगे देखते हैं. सबसे पहले लेट A equals to Aij, that is a matrix of order 3 cross 3. So let us find minors, cofactors and corresponding adjoint. So element will write down A11 equals to 1, A12 equals to minus 1 और एलिमेंट को लिख रहा हूँ मैट्रिक्स के. पहला 1 1 बने 1 2. अब A13 equals to 2, मैट्रिक्स पर ध्यान दे. A21 equals to 3, A22 equals to 0, A23 equals to minus 2, A31 equals to 1, A32 equals to 0, A33 equals to 3. So here we start minors MIG. So how we can now talk about, first we'll suppress minor. So once we suppress minor, suppress 1, we get 0, minus 2, 0 and 3. So on solving this, we get answer as 0. So without wasting time, why not to solve cofactor A11 equals to so minus 1 ka square, that will be 1, and M110. M12 माइनस 1 को सप्रेस करते हैं, इस रो और कॉलम में उसे सप्रेस करते हैं. क्या बचा? 3 minus 2 1 and 3. So 3 3s are 9 plus 2, that will be 11. कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं. A12 minus 1 का odd power, that is negative 1. M122 is 11, that is equals to minus 11. M13, अब 2 जिस रो और कॉलम में, मतलब ये 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 13 जिस रो और कॉलम में उसे छुपा दीजिए. So what we get is 3 0 1 0. So we get answer as 0. So A13 is minus 1 raised to 1 plus 3 into M13. So we get as answer minus 1 raised to 4, that will be 1 itself, and M13 is 0, so answer will be 0. Now M21. So now we'll suppress this 3. So what we get once we suppress this 3, we get minus 1 2
0 and 3. ये देखिए 3 को हमने सप्रेस किया, 3 जिस रो और कॉलम में उसे सप्रेस किया, -1 2 0 3. So what we get answer out of this is -3. Now A21 -1 raised to 2 plus 1 into M21. Now -1 का odd power -1 into -3. Then M22 0 को सप्रेस करेंगे, इसको हमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 1 3. 0 को सप्रेस करेंगे, 1 1 2 3. So 3 minus 2, that will be 1. A22 -1 raised to 4, that will be +1, and to answer of this minor will be 1, so answer is 1. A23, that is M23, अब इस -2 को सप्रेस करेंगे, 1 -1 1 0. ये देखिए -2 जहाँ जिस रो और कॉलम में उसे सप्रेस करेंगे, 1 -1 1 0. So on calculation we get a 0 minus of -1, that will be +1. Now A23, so that is -1 raised to 2 plus 3 into M23, that is -1 into 1, which is equal to -1. Now M31, 1 को सप्रेस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, -1 2, 1 को सप्रेस करेंगे, -1 2 0 -2. सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2. A31 -1 raised to 3 plus 1 into M31. M32. So if I suppress this 0, wherever it is present, 1 3 2 -2. I hope you are understanding the process. It's a one question which I am going to give you whole solution. Next adjoint question, I mean to say, उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वो तो एक स्टेप प्रॉपर देख लीजिए पूरा. तो ये 0 है, इसको सप्रेस किया और 1 3 2 -2 मिला हुआ है, तो ये क्या होगा, -2 -6 -2 -6 -8. A32, so -1 raised to 3 plus 2 into M32. So this will be -1 raised to -1 into -8, which is equals to +8. Now M33, इस 3 को सप्रेस करेगी, तो वो सप्रेस किया, इस 3 को अगर हमने सप्रेस किया, छुपा दिया हमने, तो क्या क्या मिलेगा हमें, 1 -1 3 0. So 0 plus 3, that will be 3. Now A33, -1 raised to 3 plus 3 into M33. So ये हो जाएगा आपका +1 into 3, and that is equals to 3 again. So matrix of cofactors, first of all we'll write down that A11, A12, the one के corresponding cofactor A13,
A21, 22, 23, 31, 32, 33। तो एक कोफैक्टर्स क्या क्या थे? जैसे A11 आपका 0 आया था, A12 -11, A13 0, A21 is 3, A22 was 1, A23 was -1, A31 was 2, A32 was 8, and A33 was 3. So we got a first adjoint. What is the adjoint? Transpose of matrix of ये जो कोफैक्टर्स का आपका मैट्रिक्स आया हुआ है उसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा आंसर? 0 -11 0, ट्रांसपोज ले रहे, रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो, और लास्ट रो को हम कॉलम बना रहे 2 8 3। ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या फाइंड करने बोला हुआ है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसके पहले एक ऑपरेशन कर लेता हूं मैं, ये बताने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करके देता हूं आपको, क्योंकि प्रूव वो करना है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 इंटू, सर भैया 0 -0 प्लस 1 इंटू 9 -2 9 -2 प्लस 2 इंटू 0 -0। इन शॉर्ट, अब जब मैं ए इंटू एडजॉइंट ए आपके लिए मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूं ओरिजिनल 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और इसके साथ मैं एडजॉइंट ए जो आपका आया हुआ है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब देखिए, जब ये मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप भली बात ही जानते हो, तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे कुछ मैट्रिक्स मिलेगा। और इसमें से जब मैं 11 कॉमन लूंगा तब मुझे मिलेगा मल्टीप्लिकेशन। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जानते हैं कैसा है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया गया है, और आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ 11th आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल पर 1, बाकी सब 0। सिमिलरली जब आप एडजॉइंट ए इंटू ए भी मल्टीप्लाई करोगे, अब आप कहेंगे सर ए इंटू एडजॉइंट और एडजॉइंट इंटू ए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लैरिफिकेशन किया था कि मैट्रिक्स ए बी और बी ए दोनों इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट वो इक्वल नहीं होते, इसलिए बहुत से अलग प्रॉपर्टी भी जनरेट होती है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन आपको करके बतानी है। तो एडजॉइंट इंटू ए जब आप करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इन शॉर्ट आप जब पूरा सम अप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए इंटू एडजॉइंट ए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए सीधा अगर आएगा तो, which is equal to determinant of A into I. I hope things are clear. Quite lengthy question, but anyways, one part at least can come for exams. Go to the next question. So next question, find the inverse of the following matrices by adjoint method. So 2 cross 2 matrix दिया हुआ है यहाँ। फॉर्मूला पहले जान लेते हैं, that A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. चलिए, एडजॉइंट के लिए प्रोसेस एकदम बहुत ही सरल प्रोसेस है। पहले तो मैट्रिक्स ए को कंसिडर करेंगे, ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, देन एलिमेंट्स, के बाद माइनर्स,
और माइनस के बाद कोफैक्टर्स. सो एलिमेंट्स में सबसे पहले तो a11 which is 2, a12 which is -2, a13 which is a21 which is 4 and a22 which is equal to 3 minus, जब मैं 2 को सप्रेस करूँगा तो मुझे 3 मिलेगा. जब इस -2 को मैं सप्रेस करूँगा मुझे 4 मिलेगा. जब इस 4 को सप्रेस करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा. अब जिस रो और कॉलम में उसको ऐसे. जब मैं इस 3 को सप्रेस करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा. अब कोफैक्टर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं. क्या है कोफैक्टर का फॉर्मूला? aij इक्वल्स टू -1 raised to I plus j into mij. सही है. So a11 equals to m11. So -1 raised to 1 plus 1 into m11. So -1 raised to 1 plus 1, that will be positive 1, and m11 is 3, so that is equals to 1 into 3, and that is 3. Then a12, which is -1 raised to 1 plus 2 into m12, -1 raised to odd power, that is -1, m12 will be 4 minus 4. Then a21, -1 raised to 2 plus 1 into m21, that is -1 into -2, and that is equals to 2. a22, so first we'll have a matrix of cofactors. What is the matrix of cofactor is a11, a12, a21, a22. a11 is 3, a12 is -4, this is 2, and this is 2. And therefore adjoint of A is just a transpose of above matrix. So what will be the transpose of this matrix? Will be 3 minus 4, 2 and 2. So see how easy process is of adjoint A. Now determinant of A. Now what is the determinant of A in this case? Will be 2 3 is 6 plus 8, that is 14, is not equals to 0. Therefore we must say that A inverse definitely exists. Now what is the formula for A inverse is? A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. Now what is the determinant of A is? 14. What is the adjoint? That is 3 minus 4, 2 and 2. So see how easy process is this. We'll have a quick revision of the process. Find the inverse of the following matrices by the adjoint method. So we have an element with us, next is minors and then cofactors. Now you can see there was so much of hard work when there is a 3 cross 3 matrix, but when there is a 2 cross 2 matrix, it's quite easy. Yes, we have to just suppress and element is obtained. So we got cofactors, what is matrix of cofactors, and then there what is the adjoint transpose of this. मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिया क्या वो एडजॉइंट है. ठीक है,
determinant of A is non-zero, A inverse definitely exists, but A inverse formula is there, apply that and get the answer. That's what the whole process is there. You go to the next question. So next is example number 6, find the inverse of the following matrices. Now I'm not going to show you whole method, I'll be just discussing with you, but when writing in your notebook you show the whole process. So first of all, what to do? Now when I say inverse of the following by matrices, I can have 3 methods: by the A inverse by ERT, A inverse by elementary column transformation ECT, and by the adjoint method. But my suggestion to you students, if you get a chance like this in your exams, and if they ask you find the inverse of the following, without any second chance I should go by the adjoint method, because chances of getting answer is much more than ERT and ECT. That doesn't mean in the ERT and ECT we don't get an answer, but correctness is more accurate method is adjoint method. I'm repeating again, if you go by all 3 methods you come across same conclusion. So how we can get this? First of all, so quite simple. First of all आप क्या करना है, आपको मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स माइनर्स, जैसे हमने आज के हमारे पहले क्वेश्चन में किया था, कोफैक्टर्स. ठीक है ना, ये फॉलो करना है. अब ये फॉलो करने के बाद आपको सबसे पहले क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होगा पता है आपको, ये ऐसे कुछ. तो आज के पहले सबको जो रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. उसके बाद एडजॉइंट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. ट्रांसपोज लिख रहा हूं इसका. ये लिख दिया हमने ट्रांसपोज. और अब ये जब ट्रांसपोज एक बार आपके पास आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गया, तो आपको डिटर्मिनेंट ये बताना है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है. ठीक है, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. और फिर फॉर्मूला कैसा इस्तेमाल करने वाला है आपको, कौन सा करने वाले हैं आप, सॉरी, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. बस डिटर्मिनेंट है आपके पास यहाँ आएगा, जो भी सॉल्व करके आएगा, एडजॉइंट आपने फाइंड किया है, सब्स्टिट्यूट करिएगा. ठीक है ना. तो इसी प्रोसेस से सॉल्व करिए, टेबल फॉर्मेट प्रॉपर बनाकर काम करिएगा. हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं. मिसलेनियस की ओर बढ़ते हैं, जो इसी का एक्सटेंशन है अगले क्वेश्चन की ओर. कौन सा सब क्लियर है, केस स्टडी हमने एक्सप्लेन की है. सो अगले क्वेश्चन की सीरीज मिसलेनियस 2a. देयर इज अ मैट्रिक्स ए, देन रिड्यूस इट टू I3 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके I3 बनाना है. I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. तो कैसे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो केस स्टडी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होना चाहिए वो एरो डायग्राम. पहले इस रिस्पेक्ट टू 1 ये 2 को 0 बनाएंगे, बाद में मिडल वाले 1 पर आएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये 2 0 बनाएंगे, बाद में इस 1 पर आ जाएंगे, और बाद में इन 2 को 0 बनाएंगे. इसी ऑर्डर को फॉलो करना है. ठीक है. सो वी आर गिवन अबाउट मैट्रिक्स ए. Yes, what is that? 1 0 0, 2 1 0 and 3 3 1. चलिए शुरुआत करते हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू 1 ये 2 0 बनाने हैं. तो यहाँ ये 2 ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब हमारा काम यहाँ कम हो जाता है. हम सीधा आ जाते हैं मिडल वाले 1 पर.
अरे वाह, यहाँ भी एलिमेंट 1 है ना। विद रिस्पेक्ट टू 1 इन दो को 0 बनाना है। देखो यहाँ भी 0 है, तो ये बस बचा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कॉलम 1 है दोस्तों और ये मेरा कॉलम 2 है। तो मुझे कॉलम 1 को क्या बनाना है, कॉलम 1 को बनाना है मेरे को 0। कैसे करेगा ऑपरेशन, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। So what will be the new matrix? कॉलम 1 माइनस 2 C2, पहले तो 1 है, ऐसे आ जाएगा। 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, so 2 माइनस 2 will be 0। C1 3 माइनस 2 इंटू C2, 2 माइनस 6 माइनस 3। now with respect to 1 ये दो 0, चलो ये दो 0 भी आ गए। अब इस 1 पर आ जाते हैं, यहाँ भी 1 है। अब इन दो को 0 बनाना है। देखिए कैसे, ये कॉलम 2 में है और ये कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस, या नेगेटिव है इसलिए प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3, एंड कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C3। इंटरेस्टिंग ऑपरेशन। सीधा आपको जो रिक्वायरमेंट है आपके हाथ में आ जाती है। तो एक दो बार जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर में इसको 100% रिड्यूस कर लिया हुआ है। आई होप ऑपरेशन सा क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि उसी ऑपरेशंस को आप भी फॉलो करें। आप ऑपरेशन आपके हिसाब से आपको जो लगता है वैसे जाना चाहिए, आंसर्स डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं भी अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ए इनवर्स बाई ERT, और उन सम्स के लिए वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट, सर कैन वी डू दिस, कैन वी डू बाय दिस मेथड? सो आंसर इज यस, यू कैन गो बाय द मेथड you are, but remember the inverse is unique. So the way you follow method, in my case study I mentioned that A inverse is always unique. So A inverse is unique. So you cannot have two different answers. That you have to take care of. You cannot have an analogy, sir, I have went with this method so my answer should be in this way. Sorry, that is wrong. So that you have to take care of. So we'll go to the next question, and most probably the last question of this today's lecture. So example number 5 from the same miscellaneous exercise. There is a matrix A, x0, 0, 0, y, 0, 0, 0, z is a non-singular matrix. Then find A inverse by elementary row transformation. Hence find the inverse of. So here we are. ERT elementary row transformation का इस्तेमाल करने बोला हुआ है. Let A equals to x 0, 0, 0, y, 0, 0, 0, z. So first we're going to find out a determinant. Now if you solve, you come across answer as x, y, z, as we don't know x, y, z. Now actually examiner should have mentioned that x, y, z all three are non-zero numbers. Okay, but we can take this as not equals to 0, and therefore we can mention that A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. If that is the case, then we can say that A inverse exists. Now as question में mention है कि ERT, so we have to use A into A inverse is equal to identity matrix. Now matrix A is x 0, 0, 0, y, 0, 0, 0, z into A inverse equals to identity matrix. अब A inverse find करने का we cannot get a better and the best as well as easier question than this.
instead of best, I must say easy question than this. You can see a row 1 having only x with them, row 2 have only y with them, rest of all are 0, and row 3 have only z. What easy operations are they? See, r1 change to say 1 upon x times of r1, r2 change to 1 upon y times of r2, and r3 change to 1 upon z times of r3. So we get 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A inverse equal to 1 by x 0 0 0 1 by y 0 0 0 1 by z, and this is definitely identity matrix. And which is A inverse. So that's what we have, quite easy question this is. Only diagonal elements are there. If you see original A, we have only diagonal elements which are x, y, z. And look at A inverse also have only diagonal elements. तो इसका मतलब अगर original matrix, if it have only diagonal elements, and if we ask you its inverse, it just a reciprocal of the numbers. मतलब अगर A आपका कुछ इस तरह है तो A इनवर्स आपका इस तरह है. ये देखिए आपका A और ये आपका A इनवर्स. तो इसे बिना पर आपको बोला है कि अगर मेरे पास if A equals to 2 0 0 0 1 0 0 0 minus 1, then A इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2, 1 का रेसिप्रोकल 1 खुद, और -1 का -1. रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर दैट्स इट. देखिएगा कितना आसान प्रोसेस था. आने वाले लेक्चर्स में जो ए इनवर्स के सम होगी उनमें आपको सिर्फ ऐसा डायगोनल बाय एक्स वाई जेड और बाकी सब जीरो ऐसा एक आध बार क्वेश्चंस नहीं मिलेगा. दिस क्वेश्चंस यू माइट नॉट गेट. यू माइट हैव ऑल 9 एलिमेंट्स, but if you just refer part of case study, that become easy for you. So that's what we have today introduced. Type 2A, that is called A inverse by ERT, A inverse by ECT, and A inverse by adjoint method. Today greatly we have seen questions which are based on only adjoint method. I hope students you are completing all your notebooks. You are every day you are given the chance in Purushottam private tuitions of attending JEE lectures in the morning. Almost 12 hours coaching of JEE going on in the morning, as well as HSC lectures are also being conducted on the same day for 1 hour. So you got almost chance of getting 15 to 20 hours coaching in a week of mathematics. I hope with the decided portion by AICTE for JEE, as well as decided by Maharashtra government for their theory papers, we can able to complete within a stipulated time and the revision course can be done. But request to all of you not to have a pile up work, and वो ऐसा बढ़ता जाएगा और बाद में अरे सर हमें ये नहीं आया वो नहीं आया. तो आप आपका शेड्यूल बनाकर वापस, मैंने बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, ये आपका धाड़स बंधाने के लिए कह रहा हूँ, ना बल्कि धाड़स घटाने के लिए कि आप घर पर है, आप सुरक्षित है, आपके ट्रैवलिंग ज़ीरो है. तो आप प्रॉपरली प्लान करें आपके लेक्चर्स, प्रॉपरली प्लान करें आपके शेड्यूल और उस पर काम करें. क्योंकि आप पूरे दिन, अब जब आपकी ट्रैवलिंग नहीं है तो आपको कोई भी मानसिक, जो हम कह सकते हैं थकावट या ऐसा कोई आप पर आने वाले, तो आप घर पे रहकर इन सबको प्लान करके इनको सॉल्व करिएगा और जो भी डाउट्स है उन्हें पूछिएगा.
कभी कभार इनका उत्तर देने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट रिकॉर्डिंग का लेक्चर का नोट्स बनाना वो सब में थोड़ा सा समय लग जाता है आप सब विद्यार्थी यानी। स्टे ट्यून फॉर आवर लेक्चर नंबर 4 and please quickly go through case study, go through all problems and solve the questions. Thank you students. Thank you.